Jai Hind, dear students. I am your science teacher, Dr. Preeti Mittal, and we are studying the chapter Chemical Reactions and Equations. Now, let's see to the last topic of our chapter, that is oxidation and reduction in daily life. तो ये redox reactions, oxidation और reduction daily life में भी चलता रहता है. So let's see to that. One such example of daily life experience is corrosion. Corrosion of metals. You must have seen the rusting of iron. That is also an example of corrosion. So, how we'll define corrosion? Corrosion is the degradation of the quality of metals because of reaction with either oxygen or water or some acids or any of the reactants in the atmosphere that leads to degradation of its quality. तो हमारे मेटल्स की क्वालिटी ये सब चीज़ें लाइक ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सम एसिड्स, these all can degrade the quality of our metals and that only is known as corrosion. corrosion सुनते ही सबसे पहले एक ही एग्जाम्पल दिमाग में आता है, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन. सो दैट इज नॉट ओनली corrosion. corrosion में इंक्लूड होगा हमारा सिल्वर की ज्वेलरी काली पड़ जाती है. when we are using silver for a long time, then वो ब्लैक हो जाती है. दैट इज ऑल्सो corrosion ऑफ सिल्वर. एंड कुछ एक्स्ट्रा इज दैट ये सिल्वर की ज्वेलरी काली क्यों पड़ी? दैट इज बिकॉज ऑफ रिएक्शन विथ सल्फर. सल्फर से रिएक्ट करता है हमारा सिल्वर एंड इट फॉर्म्स सिल्वर सल्फाइड. सिल्वर सल्फाइड का कलर ब्लैक होता है और इसलिए हमारी ज्वेलरी ब्लैक कलर की हो जाती है. सिल्वर की ज्वेलरी थोड़े टाइम यूज करने के बाद ब्लैक कलर की हो जाती है. बट यू माइट थिंक कि ये सल्फर आया कहाँ से? दिस सल्फर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर स्वेट. This sweating leads to the tarnishing of silver. Yes, corrosion of silver is known as tarnishing of silver. तो हमारी सिल्वर की ज्वेलरी खराब करी हमारे खुद के स्वेट ने. So that is one of the examples of corrosion. Another common example of corrosion is the corrosion of copper vessels. आपने घर में कॉपर के जग वगैरह में इस तरह की कोटिंग देखी होगी. That is because of formation of copper carbonate. Copper, water and carbon dioxide present in the atmosphere से react कर जाता है and it forms copper carbonate और इसके साथ कुछ water molecules भी attach हो जाते हैं and that only is known as corrosion of copper. तो हमारे कॉपर को ऑक्सीजन ने नहीं खराब किया, हमारे कॉपर को खराब किया कार्बन डाइऑक्साइड ने. एंड रस्टिंग क्यों होती है? Rusting occurs when iron reacts with oxygen as well as water. दोनों ज़रूरी हैं. अगर आयरन को ऑक्सीजन या वाटर दोनों में से एक चीज़ भी ना मिले तो फिर आयरन की रस्टिंग नहीं होगी. So for rusting, two things are compulsory to be there. That is presence of oxygen as well as presence of water. And that leads to the formation of rust. Okay, so rusting का रीजन है ऑक्सीजन एज वेल एज वाटर, क्योंकि रस्ट के फॉर्मूला में भी ऑक्सीजन एंड वाटर दोनों हैं. सो कुछ एक्स्ट्रा आई एम टेलिंग दैट्स नॉट देयर इन एनसीईआरटी. रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O. तो आयरन के साथ में ऑक्सीजन भी आ गया है एंड वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं. ये XH2O क्या है? दैट इज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज नॉट फिक्स्ड. इट कुड बी 2, it could be 8, it could be many. So number of water molecules will depend कि कितने water molecules उसको surround कर रहे हैं, इतने वो absorb कर लेता है. तो this is the formula of rust. And if you remember, हमने बात करी थी कि जब हमारे ferrous sulfate का thermal decomposition हुआ था तब भी Fe2O3 फॉर्म हुआ था और हमने कहा था उसका कलर है रेडिश ब्राउन. And the color of rust is also reddish brown. Okay, but that was extra. You need not write that in this topic. So rusting of iron, tarnishing of silver, formation of copper carbonate on copper vessels, all these are the examples of corrosion. So that's all about corrosion. Our next and the last topic of the chapter is oxidation of food items. Food items का भी oxidation हो जाता है and that is known as
रैंसिडिटी। ओके, तो रैंसिडिटी का मतलब होता है कि फूड आइटम्स में प्रेजेंट फैट्स का ऑक्सीडेशन हो जाए। सो आई विल डिफाइन दैट रैंसिडिटी इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स प्रेजेंट इन फूड आइटम्स। तो जो फूड आइटम्स में जो फैट्स कंटेंट है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एंड ऑक्सीडाइज हो जाता है, और फैट्स के ऑक्सीडेशन से उस फूड आइटम का टेस्ट और स्मेल दोनों ही चेंज हो जाते हैं। सो यू कैन जस्ट ट्राई विद दैट। आपके घर पे नमकीन या चिप्स आपने फ्राई किए और उसे बहुत दिन तक रखकर आप भूल गए, ऐसा होता नहीं है, वो जल्दी जल्दी ख़त्म कर देते हो आप, आई नो दैट। बट इन केस आप उसे रखकर भूल गए तो आप थोड़े टाइम बाद उसे ट्राई करोगे तो उसका टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगेगा। That alteration of the taste as well as the smell of that food item is known as rancidity, और ये होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स की वजह से। एंड इसी रीजन से चिप्स पैकेट्स जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, दे आर हैविंग नाइट्रोजन गैस फिल्ड इन दोज पैकेट्स। तो आपके चिप्स पैकेट्स में एयर नहीं भरी हुई है, नाइट्रोजन गैस इज फिल्ड ऑन दोज चिप्स पैकेट्स। एंड नाइट्रोजन गैस ही क्यों? नाइट्रोजन नॉन रिएक्टिव है, कम रिएक्ट करती है, हमारे फैट से तो रिएक्ट नहीं करेगी। एंड सो नाइट्रोजन गैस इज फिल्ड इन द चिप्स पैकेट्स सो दैट ऑक्सीजन रिमूव हो जाए। तो ऑक्सीजन को हटाना है, पर हम एयर फिल करेंगे हमारे चिप्स पैकेट में तो ऑक्सीजन साथ में आएगी, एंड इसलिए हम एयर फिल नहीं करते, वी फिल सम नाइट्रोजन। एक बात आपके माइंड में और आ सकती है कि क्यों ना वैक्यूम कर दिया जाए। अगर वैक्यूम कर दिया जाएगा तो आपके पैकेट्स का साइज बहुत छोटा हो जाएगा। एंड सेकेंड थिंग इज दैट वैक्यूम होने की वजह से सारे चिप्स के पैकेट्स जब आप एक साथ रखोगे सो दे कुड बी क्रश्ड। सो आपके सारे चिप्स टूटे टूटे निकलेंगे, दैट विल बी इन स्मॉल स्मॉल पीसेस। सो व्हाट्स द बेस्ट ऑप्शन that's easily available, that's not very expensive also, that is filling the chips packets with nitrogen gas. आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन दो आते हैं, that what is rancidity and how you can prevent that. So for preventing rancidity, you can store your food items in airtight containers and the chips packets are flushed with nitrogen gas to prevent rancidity. Okay, so by that we have completed the entire chapter. So that's all for today. Take care of yourself. I hope you were able to understand the chapter and you find it interesting one. So take care of yourselves and good day everyone.